हम आज का क्लास हम शुरू करेंगे. So in the last class I asked you to write the heading Christian ministry as the continuation of ministries of discipleship and Jesus or Jesus and disciples. इधर तक लिखा था. मतलब ये मसीह जो सेवकाई है, सेवा है, यीशु मसीह और उनका चेले लोग जो सेवकाई किया था उसका कंटिन्यूएशन है. Which means the ministry which we are involved, it is a continuation of the ministry that Jesus and his disciple already did. So they have already showed us an example. हमारे लिए वो लोग एक उदाहरण दिखाया how we should engage in ministry, how we should participate in ministry. In the I think before that I made one heading, ministry in mission we are the participants. बोला था इस सेवाकाई में, सेवा में हम शामिल हुआ है. मिशन इज नॉट आवर्स, और ये जो सेवकाई हमारा नहीं है, हम यीशु में परमेश्वर का सेवकाई में शामिल हुआ है. वी आर जस्ट पार्ट्स. अंडरस्टूड? वी आर जस्ट पार्टिसिपेंट्स और वी आर जस्ट पार्टिसिपेटिंग इन दिस मिशन. इन दैट some more explanation or introduction for today's section. For example, God called me and entrusted me to do some mission or some missionary work or some task, particular task somewhere. एक जगह पर परमेश्वर ने मुझे बुलाकर एक सेवकाई दिया और सेवा दिया. It doesn't mean if I am not doing, the mission will not go forward. मैंने नहीं किया तो सेवकाई रुक गया करके नहीं. When God himself when God understands that this fellow will not carry out this mission, what he will do? He will remove that fellow. He will remove that person and he will add or he will join a person who can carry the mission forward. मतलब मैं परमेश्वर मुझे दिए हुए जिम्मेदारी मैंने अच्छे से नहीं कर रहा करके परमेश्वर समझने के बाद परमेश्वर वहां मुझे नहीं. For example, look into the life of Saul in Old Testament. God asked him to be the king of Israel, and God asked him to protect the people and work for the people. But when he started doing his own will, परमेश्वर ने क्या बोला? From today onwards, he is not king according to my eyes, but he himself became a king. उन्होंने खुद उसके बाद भी राजा बनकर कुछ किया था, कुछ भी विजय नहीं. There was no success after that. So this is the same formula in New Testament also. नए में भी सेम फॉर्मूला है. किसी एक व्यक्ति का परमेश्वर ने किसी जिम्मेदारी दिया. If God is asking us to take the responsibility of some mission field or some mission work, if we are not doing that properly, what God will do? Somehow कुछ ना कुछ संदर्भ आएगा, कभी कभी हम खुद निकल के जाएगा. Sometime we will leave ourselves or someone will come and tell us you can leave, I will appoint someone else. So this is the pattern we can see in Bible. So the ministry or the mission where Jesus and his disciples did, we have converted into many points here in this PDF that you have already wrote down on this paper. In that first point, what is mission already we have discussed. What is mission करके हमने discussion कर दिया है और हो गया फिर पुराना क्लास में. So under that, so the heading mission as a continuation of the ministry of Jesus and his disciples. Under that we can see the beginning of church. कलीसिया का शुरुआत कहाँ हुआ? प्रेरितों का काम. हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी और हिस्ट्री ऑफ चर्च कहाँ से शुरू होता है? From where we can study the history of church? प्रेरितों का काम Acts chapter 2 verse, और where the gospel ends. Jesus asked the disciples to stay back, be in prayer. When you receive Holy Spirit, you can go and share the word of God. This was the command Jesus told them. मतलब यीशु मसीह चेलों लोगों से बोला इंतजार में बैठना. कहाँ? यरूशलेम में इंतजार में बैठना. जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाओगा तब जाकर. So in order to do this ministry, what we need? ये सेवा करने के लिए हमको क्या जरूरत है? यीशु मसीह सीधा चेलों लोगों से क्या बोला? क्या मिलने के बाद जाने के लिए बोला? Receive the power of Holy Spirit, then you go and do. Because with our power or with our own will, we can't do anything. कुछ तो कुछ कर सकता है, चिपका के रख सकता है. We can stick something, but it will not last. वो हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि we are doing something with our knowledge and with our own will. समझ आया? So
What is mean by receiving the power of Holy Spirit? All these points you can just write for today's introduction. So पवित्र आत्मा का शक्ति पाना का मतलब क्या है? गलातियों का पत्री अध्याय 5 20 से लेकर पढ़िए. Galatians chapter 5 verse 20 onwards. Read. What is the power of receiving? Holy Spirit. What we mean when we say that receiving the power of Holy Spirit? बोल रहे हैं ना, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैंने सब कुछ, वो सब कुछ क्या है, वो पावर क्या है, क्या पावर पा रहा है. गलातियन अध्याय 5 20 से लेकर पढ़ना. हाँ नहीं, 18 से लेकर पढ़ना. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits, and anger, which we will rise, dissensions, envy, drunkenness, oris, and things like this. I want you as I want you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. वहाँ पवित्र आत्मा का दान क्या है और फ्रूट्स क्या है, फल क्या है नहीं लिखा है. इस दुनिया का आंसर हमारा शरीर क्या क्या करना चाहता है, फल लिखने के बाद 22. बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल. अगेंस्ट सच थिंग देयर इज नो लॉ. तो पवित्र आत्मा का शक्ति या सामर्थ्य पाने का मतलब क्या है, इस वचन में बहुत अच्छा से लिखा है. अब बहुत कुछ तोड़ने के लिए और बहुत कुछ सामान और करने के लिए तो नहीं है. In order to do ministry, what are the qualities we should keep or we should get from God? That is written in verse 22. So, कलीसिया का शुरुआत, पहला पॉइंट है the beginning of church. The beginning of church, the beginning of mission. You can write. The main heading, Christian ministry or the continuation of the ministry of Jesus and his disciples. यीशु मसीह और उनका चेला लोगों का सेवकाई का कंटिन्यूएशन है. इस सेवकाई, इस मसीह सेवकाई. उसके नीचे हमने कुछ बातें डिस्कशन करने के बाद मैंने पॉइंट बोला द बिगिनिंग ऑफ चर्च, कलीसिया का शुरुआत, प्रेरितों का काम 2 का 8, प्रेरितों का काम 2 का 8. एंड इन ऑर्डर टू डू मिनिस्ट्री, so in order to do ministry there was a process according to Bible. Jesus told his disciple, wait and receive, then go. वेट करना, पाना, उसके बाद जाना. बैठो दोनों, सिट. ये आज के लिए मैंने छोड़ दिया. मुझे आज खाने से पहले, मतलब 1 बजे से पहले पूरा लिख के दिखाना. सो वेट, रिसीव एंड गो. समझ आया? प्रोसेस क्या है समझ आया? Wait, receive and go. And this waiting is very very difficult for us. Maybe this waiting is a type of training. कुछ भी हो सकता है. हमको बहुत दिक्कत है, कितना समय वेट करना पड़ेगा, कैसे पाना पड़ेगा. Then we are not going to get deep into the beginning of church. कलीसिया जैसे शुरू हुआ. Of course we know beginning of church was they used to meet at homes. छोटा छोटा घर पे मिलकर प्रार्थना करते थे. So house churches were there. You can write house churches. Then it expanded to church today we have. That we can know from the letters that Paul wrote to many places, many churches. कोरिन्थिया में चर्च था, कोलोसिया में चर्च था, तिमोथी जगह था, एफेसस में था, फिलिपिया में था. So कलीसिया शुरुआत हुआ किसी का घर पे, जैसा हमारा गांव में होता है अभी भी, कुछ कुछ छोटा छोटा गली में, कुछ कुछ घर पे होता है कलीसिया. From there it expanded to churches in cities also.
That evidence we have when we study the life and ministry of Apostle Paul or the letters which we wrote. कुरिन्थिया का कलीसिया के लिए, एफेसिया का कलीसिया के लिए, गलातिया का कलीसिया के लिए. So all these churches name only. वो जगह पर जो चर्च था उसका नाम है. So house churches से it expanded to the church which we have today. घर पे मिलते थे, उसके बाद कहाँ पहुंच गया कलीसिया आज? घर अलग हो गया, कलीसिया अलग हो गया. फिर भी है पुराना जो जमाने में जैसा जो कलीसिया चलते थे अभी भी है. Then So we can say that starting from the home crusade, starting from the home crusade, house churches to the expansion, और we can say house churches से बड़ा हो गया, expand होकर जैसा एक institution जैसा मान गया. मतलब अभी कलीसिया now the church became like an institution, a social institution we can say. Under that, even what is the purpose of having a church? एक कलीसिया होने का उद्देश्य क्या है? एक कलीसिया होने का उद्देश्य क्या है? Why we need a church? What is the meaning of church? Ecclesia in Greek, gathering, called out ones, assembly. So the question, why we need a church? Huh? We can have our own personal relationship from here, where you are living, from your own house. to combine with the members and Worshipping together, to have a combined relationship, to grow in faith. Why we need church? कितना लोग कलीसिया में जुड़ने वाला, मतलब कौन सा लोग कलीसिया से आया? How many of you attended your churches? You never gone to your church? I am asking, आपका बीच में से कितने लोग कलीसिया में जाते थे पहले? नहीं जाते थे. So why we are going to church? Fellowship. So putting all this together, we through this church, on this earth, we are continuing this mission, isn't it? ये कलीसिया के द्वारा इस धरती पर ये मसीह सेवका इस मिशन को हम आगे बढ़ा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, कलीसिया में सिर्फ आराधना होता है, ताला मारता है, चला जाता है. डू वी हैव एनी अदर यूज विद दैट चर्च? संडे या फ्राइडे आता है, खोलता है, साफ करता है, आराधना करता है, पूरा नाच के कूद के आराधना कर कर फिर लॉक एंड गो. ऐसा है कलीसिया? वी कैन से हर गांव में एक चर्च आया तो इट इज काइंड ऑफ ए सोशल इंस्टीट्यूशन. क्योंकि बाइबल में देखा तो अभी यीशु मसीह सिर्फ प्रचार नहीं किया, किसी को छंगाई की जरूरत था, छंगाई. द वन हु वाज इन नीड ऑफ फूड, ही गेव फूड. द वन हु इज इन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल, द चर्च शुड वर्क. समझ आया? कलीसिया का उद्देश्य यह है, लोगों का जरूरत के अनुसार कलीसिया काम भी बढ़ाना है. अंडर दैट, church is continuing mission as a rescue. Rescue means हमारे जैसे जो लोग था इस दुनिया में अंधकार में जी रहा था, ये कलीसिया ने लोगों को सिखाया. मिशनरी या सेवकाई सिर्फ पादरी लोगों का नहीं है, इस कलीसिया में और मसीह को जानने वाला हर एक विश्वासी लोगों का है सेवकाई. सो गो एंड प्रीच द गॉस्पेल, मेक डिसाइपल एंड ब्रिंग देम टू चर्च. चर्च में जुड़ना है तो कुछ प्रोसेस तो है. एंड आई विल नॉट से दैट कलीसिया में आना है तो बपतिस्मा पक्का है करके मैं नहीं बोलता हूँ. बिना बपतिस्मा भी कलीसिया में आ सकता है. चर्च इज ए प्लेस वेयर यू विल टीच साउंड डॉक्ट्रिन, मतलब डॉक्ट्रिन सिद्धांत को सिखाते हुए नेक्स्ट प्रोसेस है बपतिस्मा लेना. ये सब बात है, समझ आया? कलीसिया में जुड़ना है तो बपतिस्मा लेकर आकर सीखना नहीं. बाइबल हमें बोला सिखाओ, उसके बाद बपतिस्मा. आजकल ऐसा होता है, बड़ा पादरी आया करके सबको बपतिस्मा दे देता है, उसको पता भी नहीं व्हाट इज मीन बाय बपतिस्मा. बपतिस्मा लिया बपतिस्मा क्या है किसको पता? सर, बड़ा पास्टर आया था, हमको बुलाया था, बपतिस्मा. सो चर्च इज ए प्लेस
द मेन मिशन इज रेस्क्यूइंग पीपल। रेस्क्यू मतलब क्या है? बचाना। इस दुनिया में जिसका आत्मा, जिसका सोल, जिसका जो व्यक्ति का जीवन नष्ट हो रहा है और हो चुका है, उनका रेस्क्यू करना है सबसे बड़ा मिशन। So the point number 1, mission as rescue. Here it is written, mission as rescue. Rescue means setting free, आजादी, freedom. समझ आया? Mission means rescue means setting free. It is at times an act that forcefully saves a person from harm. किसी व्यक्ति को हार्म और उनके जीवन को हानि पहुंच रहा है और पहुंचा है, उनका जीवन नष्ट हो रहा है, समझने वाला लोग जाकर क्या करना है? व्यक्ति को वहां से उनको बचाना है। सो मिशन इज ए प्रोसेस ऑफ रेस्क्यूइंग पीपल। समझ आया? देन इट ऑल्सो मीन्स टू रिकवर, लिबरेट, डिलीवर। रिकवर मतलब कुछ था वो हो चुका है, उसको वापस लौटा के देना। विच मीन्स रिकवरी मीन्स they had something and they lost it, and through us we are recovering it to their life. What they lost, क्या वो लोग खो गया? There was a good relationship with God, खो चुका है, फिर उसको वापस। So ministry और mission is a process of reconciliation, मेल मिलाप करवाने का काम भी है। So it is a process of rescue, it is a process of delivering, it is a process of liberating, it is a process of reconciliation. reconciliation मेल मिलाप करवाना, किससे? वो व्यक्ति से और परमेश्वर के बीच में से मेल मिलाप करवाना। समझ आया? So what is meant by mission as rescue? खोए हुए लोगों को बचाना। यीशु मसीह खुद आकर क्या बोला था? मैं आया हूं पापियों को बचाने के लिए। पाप से प्रेम नहीं करना, पापी को बचाना। समझ आया? So we are not going to read the entire paragraph. मैंने मीनिंग समझाकर आप लोगों का हाथ में छोड़ता हूं। Then mission as light. Who are we? यीशु मसीह चलो लोगों और हमको क्या बोला पहाड़ी उपदेश में? हम ही वो लाइट है। So light is an important metaphor in the scripture. इस मिशन को दूसरे एक रूप के बारे में बताने है तो मिशन इज ए लाइट। जहां अंधियारा है, जहां अंधारे है, वेयर देयर इज डार्कनेस, वी आर टेकिंग दिस मिशन, वी आर टेकिंग दिस गॉस्पेल, एंड दैट इज द लाइट इन द डार्कनेस। जॉन चैप्टर 1 वर्स 4 इट इज रिटन। पढ़िए। In him was the light, and the light was the light of men. हिंदी। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्यों का। सेकंड पार्ट क्या है? मिशन आज लाइट। फॉर एग्जाम्पल, every religion have their own faith and belief. For them, their scripture and their faith is light only. फॉर एग्जाम्पल हिंदूस, उन लोगों का जो मूर्ति पूजा सब बात है, उनके लिए वो क्या है? ज्योति है। जीवन से मुक्ति मोक्ष पाना है तो कहाँ जाना है? किसी पानी में जाके डूबना है, उनके लिए वो क्या है? ज्योति ही है। व्हाट इज आवर ड्यूटी? टू रिकरेक्ट देम। उन लोगों को समझाना है ये जो ज्योति करके तुम लोग मान रहे हैं, ये सच में ज्योति। तो हमारा काम बहुत बड़ा है, ये समझाना है तो हम पहले क्या करना? समझना पड़ेगा। सो मिशन आज लाइट, लाइट इन द डार्कनेस। समझ आया? देन मिशन आज विटनेस। विटनेस का हिंदी है गवाह बनना। If you look into the life of the disciples and look into the life of Jesus himself, he became a witness by fulfilling the purpose that he came to this earth. We can say, यीशु मसीह के चेले लोग भी, the disciples were also became a witness of the faith they belongs to. Witnessing मतलब जो सच को मैंने जान लिया, जो सच के लिए मैंने प्रचार किया, जो सच के बारे में मैंने बताया, उसके लिए जान भी देना, उसको विटनेस बोलते हैं। जिहादी करके सुना कभी? जिहादी, जिहादी
आतंकवादी लोगों का कहानी सुने में लव जिहाद तो अलग है, हम जिहाद बनने के लिए आया करके बोलते हैं जो आतंकवादी लोग। मतलब जो विश्वास जो सिद्धांत दो लोग सीख लिया है उसके लिए जीवन को भी हम देंगे, फिर भी हम पीछे नहीं। तो सेम वे जीसस एंड हिज डिसिपल्स डिड मिनिस्ट्री। जो विश्वास जो बातें सच्चा है करके समझ लिया उसके लिए जीवन को भी दे दिया। यीशु मसीह का 11 लोगों में से सिर्फ यूहन्ना का कहानी में उनका मृत्यु के बारे में सीधे सीधे बुढ़ा होगा मर गया करके लिखा है। बाकी लोगों के कैसे हो गया, कुछ लोगों को उल्टा लटकाया, कुछ लोगों का चमड़ी निकाला, कुछ लोगों का गला काटा, कुछ लोगों को पत्थर से मारा। सम पीपल वर देयर स्किन्स वर पियर्स्ड एंड they were killed by stoning. There are different witnesses and witnessing process we can see when we look into the life of disciples. So mission is what? It is a process of witnessing. So mission as witness. कुछ वचन भी उसका बीच में दिया गया है, वचन पढ़ने के बाद बाकी कहानी समझ जाएगा। यूहन्ना अध्याय 1 का 7 पढ़िए, उसमें से 7 और 8 पढ़िए। रीड जॉन चैप्टर 1 अध्याय चैप्टर 1 verse 7 and 8. He came as a witness to bear witness about the light. Who came? Jesus नहीं, John जॉन द बैप्टिस्ट का कहानी है। जॉन द बैप्टिस्ट का इंट्रोडक्शन लिखा है उन्होंने, और रोशनी का गवाह बनने के लिए आया। कैसे मरा? How he died? सेवकाई किया, इसलिए उनका गला। So he became the witness. The purpose of his coming was to become, उनका आने का उद्देश्य वही था, वो भी पूरा हो गया। अभी समझ आया? इसलिए मैंने पिछले क्लास में बोला था, जो लोग मसीह लोगों को सताता है, दे आर थिंकिंग हम सोच के कर रहा करके। बाइबल ऑलरेडी स्पोक टू अस दैट दिस थिंग विल हैपन एंड योर कॉलिंग इज टू बिकम ए विटनेस फॉर दिस फेथ सो दैट यू हैव इटर्नल कनेक्शन और इटर्नल रिलेशन विद गॉड। जो आनंद जीवन के लिए तो हम आया, इस दुनिया पर हम कुछ नहीं करने के लिए नहीं। इसलिए यीशु मसीह बोला, जो तेरा आत्मा को नष्ट करेगा उससे डरो, और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो तेरा शरीर को चोट पहुंचाएगा, नो प्रॉब्लम, मिट्टी से आए मिट्टी में चले गया। मरने का रास्ता तो बहुत है, उसके बाद एक जीवन है, वो तो एक ही है। अभी समझ आया? सो मिशन इज ए मिशन एज विटनेसिंग। देन सबसे लास्ट एक पॉइंट है मिशन फ्रॉम दलित पर्सपेक्टिव। दलित मतलब क्या है? इग्नोर्ड और मार्जिनलाइज्ड और ओप्रेस्ड, जो लोगों के बीच हमारे धरती पर सता के रखा है, दबा के रखा है। आपका खुद का गांव में ही है जातिवाद। बड़ा जाति का लोग छोटा जाति का क्या करेगा? एक ग्लास में पानी देने के लिए भी 1000 बार सोचेगा कौन सी ग्लास में दूं। In order to give one glass of water, they will think twice or thrice. कौन सी ग्लास, in which glass we should, और कुछ मीटिंग में बुलाया तो इनको मैं कहाँ बिठाऊं, क्योंकि जाति में कहाँ है। So when we think about mission, Jesus and his disciples met most of the people who were rejected by others, who were thrown out by the village people, or who were thrown out because of their disease. कुछ बीमारी से, कुछ अलग रीति रिवाज की वजह से और नीति नियम की वजह से, कुछ अलग अलग रीति से लोग जिसको तिरस्कार किया था, उससे जाकर यीशु मसीह उनका चेला लोग ज्यादा मिला था। यीशु मसीह का चेला लोग भी वही है। यीशु मसीह, जीसस डिड नॉट गो टू द बिग फेलो एंड आस्क फॉलो मी। मछली पकड़ने वालों को, चुंगी लेने वाला व्यक्ति को उस समय में समूह में बहुत बुरा व्यक्ति समझते थे, बेकार इंसान समझते थे, क्योंकि लोगों को पैसा लेना पड़ेगा। मत्ती को बुलाया। सो व्हेन वी थिंक अबाउट मिशन, it is not always about the prosperity which we have today. Mission is always going to the rejected people. इसलिए यीशु मसीह खुद बोला, मैंने किसको ढूंढ के आया? पापी को ढूंढ के आया। आई केम, खोए हुए को लोग ढूंढ के आया। वो खोया है इसलिए मैंने उनको ढूंढ के आया। जो ठीक है उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है। जिसको बीमारी है उसका डॉक्टर का जरूरत है। The one who don't have any disease, do you think that he will go to doctor, or does he need doctor? So when we say mission from a Dalit perspective, we can connect it into our Indian context, because we have caste system and all this scheduled caste, tribe, Adivasi, tribal system and all.
So somewhere we are also downtrodden or we are also oppressed by others. So when we think about mission, those mission came to you, that's why today you are sitting here. और those missionary came to you, इसलिए आप लोग आज इधर बैठा है. अगर मिशनरी या सेवका करने वाला लोग सोचा हम बड़े बड़े लोगों से ही मिलेंगे, हमारे जैसे लोगों को सुसमाचार पहुंचाएगा, नहीं होगा ना. Now the problem of our India is also same, even Nepal also. प्रॉब्लम क्या है, क्यों इस आदिवासी लोगों के बीच में जाकर सेवका कर रहा है? Why you guys are going to these villages, गांव and sharing the word of God or doing some social work? यही सवाल पूछता मारता है ना. अभी those who are from that village, they started giving the answer. अरे आने दो, हमारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं. लोग बोलने लगा कि छत्तीसगढ़ में अब कुछ लड़ाई हुआ था, तब खुद ये लोग बोलने लगा, अरे वो लोग आया इसलिए हम रोशनी देख पाया, तुम लोग आता भी नहीं, जो आता है उसको आने भी नहीं देंगे. So this is the problem that is happening. So when we think about mission, mission is always going to the rejected people. समझ आया? ये जो बातें मैंने बोल रहा हूँ पूरा इस सेंटेंस के अंदर है, मैंने पढ़ के आया इसलिए मैंने सीधा सीधा बोल के जा रहा हूँ. The things which I am sharing, the content is there in this paragraph. So when you are writing report, make sure इसको छोटा छोटा शब्दों में बदल के लिख देना. So conclusion. When we think about mission, we can see there are different forms and different stages in mission. जैसा यीशु मसीह था, चेले लोग था, घर घर में मिलना शुरू हो गया, कलीसिया के रूप में हो गया. उसके बाद एफेसियंस चैप्टर 4 वर्स 11, there are different offices for mission. एफेसियंस के पत्री 4 का 11, एफेसियंस चैप्टर 4 वर्स 11, you can see there are different offices for mission. क्या क्या है पढ़िए. एफेसियंस चैप्टर 4 वर्स 11. And he gave apostles, prophets, evangelists, shepherds, teachers. Who gave? God himself appointed these officers. Officers मतलब ये पोजीशन को परमेश्वर खुद नियुक्त किया. इसमें से मैं क्या बनूंगा, आप क्या बनेगा, आपकी जिम्मेदारी, आपकी मर्जी नहीं है, परमेश्वर की मर्जी है. इसलिए when we say did you receive the call, क्या आपको बुलाहट मिला? नहीं तो बुलाहट क्या है, आपका आगे जिंदगी क्या है, वो प्रार्थना के द्वारा पर्सनली परमेश्वर से पाना. इसलिए हम बोलता है. कहाँ था पंकज, कहाँ था, क्या कर रहा था, क्या काम था? हाँ, क्या काम था? सो एफेसियों के पत्री अध्याय 4 का 11 वहां दिया है, परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को बुलाहट भी दिया. वो बुलाहट का बहुत विशेष रूप से इन स्पेशल मैनर ही अपॉइंट सम पीपल इन सम प्लेसेस. सो फर्स्ट वन अपोस्टल्स, देन प्रोफेट्स, इवेंजलिस्ट, शेपर्ड्स एंड टीचर्स. वहां नीचे लिख के रखना था द वर्क फॉर टुडे, मतलब आज का होमवर्क ये है. अपोस्टल के बारे में, प्रोफेट्स के बारे में, इवेंजलिस्ट के बारे में, शेपर्ड्स के बारे में, टीचर के बारे में शॉर्ट नोट्स बना के आना. यू कैन गूगल एंड एनीवेयर यू कैन गो, बट कॉपी मत करना. कल सुबह यहाँ से हमारा क्लास शुरू होगा. मतलब प्रेरित, उदाहरण बताता, प्रेरित, प्रेरित बोलते बोलते किसका नाम याद आता है? इफ आई से अपोस्टल्स, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नेम दैट विल कम टू योर माइंड, व्हिच नेम? पौलुस. क्योंकि ज्यादा प्रचार हम पौलुस का ही सुना है. अपोस्टल पॉल, उनके जीवन के बारे में सोचना. He was an apostle. एक जगह को रोकना नहीं सकता था उनको. He was not staying in one place and doing ministry. कैसा था? घूमना पड़ा. Traveling was the main process in his life. So if someone is receiving a call to become an apostle, क्या होगा उनके जीवन में? मैं एक ही कलीसिया में रुकता हूँ, इधर 100 लोग मैंने देखा, इधर ही रुक सकता हूँ करके तो नहीं चलेगा. If your call is to become an apostle, you have to follow the rules. घूमना ही पड़ता है. And if you are called to become a teacher, क्या करना पड़ता है? टीचिंग करना ही पड़ेगा.
एंड मेरा बुलाहट था टीचर बनने का। मैंने आकर मेरे कलिसिया को बहुत अच्छा पसंद आया। किसी इंसान ने बोला वहाँ एक कलिसिया है, सब लोग जुड़ता है, आओ सब सेटिल है। मैं मेरा खुद की मर्जी के अनुसार चला गया। आई मे डू सम प्रीचिंग और आई मे डू सम वर्क देयर, बट इट विल नॉट फिट इन टू द चर्च। समझ आया? मतलब मैं कुछ तो कर सकता हूँ, म्यूजिक बजाता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, वर्क काम तो है, बट फिट नहीं होगा। That's why we have to understand our calling. फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने बाइबल कॉलेज में पढ़ रहा था, कहाँ पे भी नहीं मुझे नहीं लगा मैं टीचर बनूंगा, कहाँ पे मुझे नहीं लगा मैं पादरी बनूंगा। ऐसा वाला लोग भी अभी हमारे सामने भी है। आप लोग का जिंदगी कोई खुद ही होगा, पता नहीं इसके बाद क्या होगा, पता नहीं। इधर बैठने वाला लोग वापस इस 3 या 2 साल में कहाँ कहाँ फेमस हो जाएगा, हम किसका नाम कहाँ सुनना पड़ेगा, वी डोंट नो। वी डोंट इवन नो हाउ मेनी ऑफ यू विल बिकम फेमस इन योर प्लेसेस एंड हाउ यू विल एक्सपांड इन दिस मिशन फील्ड। हु नोस? हमें पता नहीं। शायद जो हमारे बीच में सबसे अनपढ़ व्यक्ति है, सब सब्जेक्ट में फेल हुआ होगा, वही उसका भी नाम आगे आएगा, शायद बोल रहा हूँ। So we don't know who we will become tomorrow. So in this process, to receive you have to wait. पाने के लिए बहुत कुछ खोना तो पड़ेगा, पाने के लिए वेट तो करना पड़ेगा। समझ रहे? समझ नहीं समझ आया? In order to receive something, we have to wait and receive. तुरंत मुझे मिलना है, खुद तो कुछ करो, नहीं होगा। If you do something by yourself, you will not succeed in ministry, because ministry should be done by the help of Holy Spirit. जो निर्णय आप लोग लेता है, शायद आप लेने वाला निर्णय से सबको बुरा लगेगा। For example, if you are taking some decision in your mission ministry or in your mission field, it may even hurt your own friend. मेरा फ्रेंड को दुख होगा करके परमेश्वर का जो अगुवाई जो मिला वो छोड़ना अच्छा है? फॉर एग्जाम्पल, यू गाइस आर गुड फ्रेंड्स, हु नोस? कुछ लोग अच्छा दोस्त लोग हैं, आप लोग मिलके सेवका के लिए गया, उसमें से एक व्यक्ति ने देखा बाकी 3 लोग उल्टा कर रहा है, दोस्त को खुशी करने के लिए मैं भी शामिल होता हूं, चलेगा? वेयर यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू स्पीक, तुम लोग जो कर रहा है वो गलत है, सुधरो, नहीं तो परमेश्वर जरूर सुधारेगा। हम नहीं बोला, एक दिन पूरा सेवकाई की जगह गवाही बिगड़ गया गांव में, फिर किसी ने सेवकाई के लिए आया तो लोग उसको इज्जत देगा, बोलेगा मसीह लोग आकर ही खराब करके गया। सो व्हेन वी आर इन मिशन फील्ड, वी शुड टेक द डिसीजंस एंड वी शुड गेट द विजडम फ्रॉम अबव। लोग कुछ भी बोल रहे तो यू हैव टू टेक दैट स्ट्रॉन्ग डिसीजन। सो दैट इज एफिशिएंस चैप्टर 4 वर्स 11. Then understanding the vocation of Christian ministers. Vocation मतलब calling. नेक्स्ट हेडिंग लिखना अंडरस्टैंडिंग द वोकेशन, VOCAT, उसमें नहीं है, नया बातें बोल रहा हूँ, और PDF में है। आई हैव ऑलरेडी सेंड दिस PDF। अंडरस्टैंडिंग द वोकेशन ऑफ क्रिश्चियन मिनिस्टर, एक मसीह सेवक का बुलाहट को उन्होंने समझने की जरूरत है। अंडरस्टैंडिंग द वोकेशन ऑफ क्रिश्चियन मिनिस्टर। और वोकेशन के वहां लिखना, द मीनिंग ऑफ द वर्ड वोकेशन इज कॉलिंग, COCALLING, कॉलिंग। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 16 वर्स 5 to 12। पहला कोरिन्थियों अध्याय 15 का, अध्याय 16 का, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 16 वर्स 1 to 12, 5 to 12। You have to read that, then you will understand about calling
So here Paul is teaching to some people that परमेश्वर यीशु मसीह हमको सेवा करने के लिए बुलाया. All ministry is the Lord's work. God assigned the task and uniquely gift. मतलब पौलुस इसके वचन में बताता है परमेश्वर एक हर एक इंसान को बुलाकर उनका जगह पर रखकर what is the purpose and what is the need of that particular mission or mission task, he will give them accordingly. मतलब एक जगह पर उनको खड़ा कर कर वहां क्या जरूरत है उसके अनुसार परमेश्वर उनको गिफ्ट भी देगा. जो जरूरत नहीं है वो देकर भी फायदा भी नहीं. समझे? वो वचनों में लिखा है. So that is all about calling और वोकेशन ऑफ ए क्रिश्चियन मिनिस्टर. एक मसीह सेवा का बुलाहट अभी भी इधर इधर है और वहां घर का समस्या में है. कुछ है तो बोल के जाना. और अभी से लेकर पापा को बता देना फोन मेरे हाथ में नहीं होगा सर को फोन लगाने के लिए, नहीं तो मैं बताता हूँ. फर्स्ट वाला हेडिंग क्या था? मिशन और वोकेशन. देन नेक्स्ट हेडिंग लिखना फाउंडेशंस ऑफ क्रिश्चियन मिनिस्ट्री. फाउंडेशंस ऑफ क्रिश्चियन मिनिस्ट्री. फाउंडेशंस मसीह सेवकाई का नींव. मिनिस्ट्री क्रिश्चियन मिनिस्ट्री. फाउंडेशंस ऑफ क्रिश्चियन मिनिस्ट्री. Bible is the foundation and basis for Christian ministry. God, prophet, priest and Jesus Christ are the model of this Christian ministry. What is the foundation? Bible. And who are the models? God, Jesus and his disciples and all the missionaries. हमारे सामने इसका मॉडल बन गया. कैसे सेवा करना है इन लोगों के जीवन से हम सीख सकता है. Jesus Christ ordained his disciples to carry the ministry he had started in this world. परमेश्वर यीशु मसीह ने जो सेवकाई इस दुनिया पर शुरू किया था उसको आगे बढ़ाने के लिए किसको नियुक्त किया? उनका चेले लोगों को. Whom Jesus appointed to carry out this ministry? To his disciples. So that is the first point. Then when we think about ministry in a missiological way, we have it we have a topic that is Missio Dei, which means sending of God. Ministry or mission is Missio Dei, MISSIODEI. Missio Dei. वो PDF में है, आप लोग बाद में देख सकता है. Which means sending out. Sending out. So first one, Bible is the foundation. God, Jesus and all the apostles were the models. And second one, ministry is a process of sending out. Second point, under sending out we can see God himself came into this world. परमेश्वर खुद इस दुनिया पर आया. He sent himself, we can say. उन्होंने खुद को भेजा, उद्देश्य को पूरा करने के लिए भेजा. I am not saying father sent his son. In a normal way we say that पिता पुत्र को भेजा. पिता और पुत्र, इसलिए मैं बोल रहा हूं खुद को खाली करते. हम गाने में गाते हैं खाली खुद को उन्होंने ही किया धरती पर. He emptied himself and he came. He was in the position of God and he emptied himself and he took the form of flesh and he lived among us. समझ आया? खुद देहधारी होकर आया. Then in an educational way, एक शिक्षा के रूप में मिनिस्ट्री क्या है? Maybe this is a process of training, teaching, all these things will come.
इस मिशन हम एक एजुकेशनल वे में लिया तो कि टेक दिस मिशन और मिनिस्ट्री आता है शिक्षा का रूप में लिया तो क्या है वो, इसलिए इतना सारा बाइबल कॉलेजेस है। इन ऑर्डर टू डू मिनिस्ट्री हम पहले क्या करना पड़ेगा, दैट वाज द ड्यूटी ऑफ चर्च, बट नाउअडेज इन चर्च वी वोंट सी मच काइंड ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग, ऑल आर बिजी। जो परमेश्वर इंसान को समय दिया था, अभी इंसान परमेश्वर को कितना समय दिया, गॉड गेव टाइम टू अस, टाइम फॉर अस एंड वी गेव हिम टाइम। 3 घंटा आराधना हुआ था, उसके बाद हमको जाना है, होता है ना कलिसिया में, तो वी ऑल आर बिजी। तो उसमें से 3 घंटा आराधना में कलिसिया में। कलिसिया के बारे में बताया ना, तो कोरोना आने से पहले, कोरोना आने के बाद, कोरोना आने का पहले कैसे था, ज्यादातर लोग कलिसिया में तो आते थे, कोरोना आने के बाद ऑनलाइन हो गया, थियोलॉजी चेंज, मतलब हम नहीं है तो भी वी कैन ज्वाइन ऑनलाइन। सो इन एन एजुकेशनल वे throughout his ministry we can even see Jesus always taught his disciple, यीशु मसीह उनका चेला लोगों को सिखाते हुए ही सेवकाई के लिए लेके जा रहा था, और बिफोर सेंडिंग देम आउट ही टॉट देम मेनी थिंग। उन लोगों को बाहर सेवकाई के लिए भेजने से पहले बहुत से बातें सिखाया, सिखाता है परीक्षा लेता है, सिखाता है परीक्षा लेता है। सुसमाचार पढ़ के देखना, कुछ बातें समुद्र का किनारे सिखाया, समुद्र में भेजा, परीक्षा लिया, फेल हो गया, फिर और कुछ सिखाया, फिर सिखाया और फिर सिखाया। समझ गया? मैं पहले सोचता था एग्जाम को कौन शुरू किया, कौन शुरू किया, परीक्षा को कौन शुरू किया, परमेश्वर ही शुरू करके रखा, मतलब प्रैक्टिकल था वहां। Then last point, mission or ministry is contextual. Context means संदर्भ। मिशन या सेवकाई हमेशा क्या होता है, कॉन्टेक्चुअल, संदर्भ के अनुसार हम। इधर एक बात बताना चाहता हूँ, कल की लड़ाई में मैंने जो ताकत से लड़ाई को जीता, आज की लड़ाई में वो ताकत से जी नहीं। एक आत्मिक रूप से बता रहा हूँ, कल जो मेरा एनिमी था आज मेरा एनिमी नहीं है। मतलब क्या होगा, आत्मिक रूप से बता रहा हूं, कल जो शक्ति से मैंने स्पिरिचुअल वार में जीत लिया, मैं सब कुछ कर सकता हूं करके आज बिना प्रार्थना जाकर किसी का टक्कर मारा तो क्या होगा। जीसस सेड, हमेशा मुझ में बने रहो, थोड़ी समय के लिए नहीं। यू हैव टू अवॉइड इन मी, देन आई विल अवॉइड इन you. Till yesterday we won many spiritual wars, में बहुत चीजों के ऊपर हम विजय पाया। मैं सब कुछ कर सकता करके जाकर टक्कर मारा तो क्या होगा, गिर भी जाएगा सब कभी कभी। So this is all we have evidence in Bible itself. There are many evidences. Then mission is contextual. The need of any given context is also serve as the basis for the ministry. So when you and I goes to many places for doing ministry, हम एक जगह अलग अलग जगह पर सेवा करने के लिए जाता है। मैं केरल का बंदा हूँ, मैं मध्य प्रदेश में गांव में आकर सेवा कर रहा हूँ, मुझे मोटा चावल चाहिए, उदाहरण बता रहा, जस्ट एन एग्जाम्पल, मुझे मोटा चावल ही चाहिए, केरल का सांबार मछली चाहिए, चलेगा? मिशन इज कॉन्टेक्चुअल ऑलवेज। सो द वन हु इज गोइंग फॉर मिशन और मिनिस्ट्री, ट्रेनिंग में सब सिखाएगा। यीशु मसीह जो चेले लोग घर पे थोड़ा थोड़ा खाना खाता था, उसको बुलाकर इसका पीछे होने के लिए बोला, खाना भी कभी सीधा सीधा नहीं मिलते थे। देन ही सेड, अब भी जाकर सेवकाई। यीशु मसीह जब 70 लोगों का भेजने का जो कहानी मत्ती अध्याय 10 और कहाँ पे लिखा है, व्हेन जीसस सेंट 70 पीपल, तो यीशु मसीह चेले लोगों से बोला, बैग भी नहीं ले, डू नॉट टेक एनीथिंग, जाओ, ऐसे बोला यीशु मसीह। मतलब मिशन इज कॉन्टेक्चुअल, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट यू हैव टू डू योर पार्ट। समझ आया? व्हाट आई लर्नड फ्रॉम दिस कॉन्टेक्स्ट, at times there are some issues will come and every issues will have two sides.
कभी कभी कुछ परेशानी हमारा सामने आता है, ये हर एक परेशानी को दो भाग होता है, भाग नंबर ए, भाग नंबर बी। समझ लो, ये एक झुंड है, एक झुंड है, दोनों अगर किससे आरोप लगाता है, इधर का लीडर जो है मुझे आकर बताता है, फॉर एग्जाम्पल हर्षविल से नो 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 सर ये लोग ऐसा बोला, गोपालविल से नहीं 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 नहीं, ऐसा सर ऐसा बोला मुझे, एज ए लीडर व्हाट वी हैव टू डू। फॉर एग्जाम्पल आप एक कलिशा में पादरी करके समझ लो, आप कैसे निर्णय लेगा। अभी कॉन्टेक्स्ट ये है, कलिशा में लड़ाई हो गया, दो ग्रुप बन गया, व्हाट इज द पोजीशन और व्हाट यू विल डू अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्टेक्स्ट। विल यू सपोर्ट द फर्स्ट साइड, then you will lose B. Will you support B, then you will lose, what you will do? Need to think and train and need to correct this. If I start correcting B, A will think we are correct, Sir is supporting us or the pastor is supporting us. If I am correcting A, what B will think? देखो हम ही सही है, हम जो बोला पादरी ने, what we said, pastor believed that, then there are chances कलिशा क्या हो जाएगा। So what you will do? दोनों को सुनना है, we have to sit and think. So what was our context? हाँ, दो ग्रुप है, so what you have to do as a pastor? दोनों को सुनना है। फॉर एग्जाम्पल यीशु मसीह को पकड़ने के लिए जब सैनी लोग आया था, पतरस तुरंत क्या कर दिया, व्हाट जीसस डिड ऑन द स्पॉट, किसको डांटा, उसके बाद यीशु मसीह क्या उत्तर दिया वहां, जो तलवार से जिंदगी चलाता है वही तलवार से, मैं उसका सारांश बता रहा हूँ। सो मैंने क्या सीखा, दोनों को सुनकर, दोनों का बातें मन के अंदर रखकर ऐसा निर्णय हम लेना पड़ेगा, दोनों को बुरा लगा तो भी चलेगा, दोनों को पसंद आया तो भी, इन द एंड वो दो बोथ विल सिट एंड थिंक, हम किसको बोला, क्यों बोला, किसी को भी कुछ नहीं मिला। आई एम स्पीकिंग समथिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट बिकॉज मिशन इज कॉन्टेक्स्ट, मिशन इज ऑलवेज इन अ कॉन्टेक्चुअल वे वी हैव टू कैरी। उदाहरण, आप लोगों के कलिशा का पास्टर लोग कितना मेंटल, क्या बोलते हैं, मेंटली वो लोग कितना स्ट्रेस फील होता है पता है कलिशा। इफ यू वांट टू लीड ए चर्च, बिकॉज आई सॉ व्हेन माय फादर वाज इन दैट पोजीशन, क्योंकि छोटी मोटी बातों में दोनों लड़ता है, ये कलिशा दो भाग हो जाता है, फिर दोनों को मेल मिलाप करने का काम है किसका, पादरी का। सो ही कांट टेक सपोर्ट ऑफ एनीवन, sometimes speak to them and settle the matter, but we are human being, हम क्या करेगा, कहाँ ना कहाँ ये पुराना बातों को लेकर। so when you and I enter into the mission field, make sure you are not led by the wisdom of your own or the knowledge which you get from the people, it should be from above, from God, otherwise it is very difficult। बहुत लोग फेल हो चुका है, ये नहीं समझ पाया, खुद कुछ करके गया, अभी वहां जगह पर कलिशा भी नहीं होगा। सो लास्ट वन, कॉन्टेक्स्ट टू है, नेक्स्ट क्वेश्चन, biblical understanding of mission, biblical understanding of mission। So by giving this heading, I am winding up the class for today, biblical understanding of